Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 6 by Brain Root series, and here is a book and the name is AI, Artificial Intelligence. Children, we are going to start chapter number 3 today, and the name of the chapter is AI Ethics. So there are some ethics that are to be followed, and here in this chapter we are going to learn about what are AI ethics, AI के क्या क्या ethics हैं, why are AI ethics important, ये क्यों important हैं, ethical concerns in AI, ethical कौन कौन से concerns हैं AI में, and implementation of AI ethics, AI ethics को कैसे implement किया जा सकता है. AI is imperfect, what if it makes a mistake. AI जो है imperfect है और क्या होता है अगर ये कोई गलती कर दे. So these all topics we are going to cover in this chapter. Human beings are intelligent by nature. हम humans जो हैं वो by nature intelligent हैं, हमें God ने intelligent बनाया है. They have the ability to think, to retain knowledge, to learn from past experience, use reasoning to solve problems and to adapt a new situation. So humans क्या क्या कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं चीज़ों को, नॉलेज को रिटेन कर सकते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, रीजनिंग को यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और नए सिचुएशंस में अडाप्ट भी कर सकते हैं. Our complex brain helps us to achieve these capabilities. हमारा जो complex brain है इन सारी capabilities को achieve कर सकता है. Animals like chimpanzee, elephant and dolphin show some intelligent traits but are in no way comparable to humans. ये भी कुछ animals हैं जैसे chimpanzee, elephant, dolphin, ये क्या हैं, थोड़े बहुत तरीके से intelligent हैं, ये intelligent traits दिखाते हैं, but ये जो है फिर भी humans के साथ compare नहीं किए जा सकते. As a child, you may have slipped over a wet floor while running and hurt yourself. एक बच्चे की तरह हो सकता है आप फ्लोर पे गिर जाओ, स्लिप हो जाओ और आपको चोट लग जाए. The experience taught you to walk carefully over wet floor. और अगली बार जब आपको कोई ऐसा वेट फ्लोर मिले तो आप क्या करोगे, आपका जो कॉन्शियस माइंड है उस पूरे इंसिडेंट्स को रिकॉल करेगा कि अगर हम इस गीले फर्श पे चलेंगे, दौड़ेंगे तो क्या होगा, हम स्लिप कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे केयरफुली चलने की कोशिश करेंगे. You remember your past experience and this prevent you from facing similar falls in future. This is human intelligence और इसे ही human intelligence कहा जाता है. The ability to learn from past experiences that prevent you from taking wrong decisions that may harm you. So हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, ऐसी कहावत है. So हम कोई भी ऐसी गलती करते हैं उसे सीखते हैं और फिर फ्यूचर में ऐसी कोई भी गलती रिपीट नहीं करते, ये हम सीखते हैं. यही तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है. Since the invention of computer machines, their capability to perform various tasks increased exponentially. So जैसे जैसे कंप्यूटर मशीन्स का इन्वेंशन बढ़ता जा रहा है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ रहा है. Humans have developed the strength of computer system in terms of their diverse working domain. Humans ने क्या किया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ को पुट ऑन किया है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है. And they increase speed, they reduce size with respect to time. इनका जो है स्पीड बढ़ गया इन कंप्यूटर्स का, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एंड ये जो है साइज में कम हो चुके हैं, स्पीड बढ़ चुका है और ये हमारे टाइम को भी सेव करते हैं. With the advancement in technology, we have chess playing computers, self-driving cars, personal digital assistant apps, voice recognition apps and flying drones. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ये सारी चीज़ें हमारे पास एज अ टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं. These applications use various technological tools. ये जितनी भी applications हैं ये अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करते हैं लर्न करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए खुद से. This ability of machines is known as artificial intelligence. और ये जो एबिलिटी है मशीन्स की खुद से काम करने की, इसे ही तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं.
It is a science and technology based on disciplines such as computer science, biology, physics, psychology, philosophy, mathematics and sociology. So ये सारी चीज़ों पे based है ये science और technology, artificial intelligence की. Ethics is a set of moral principles which help us discern between right and wrong. So ethics क्या होते हैं? ये कुछ moral principles होते हैं, कुछ rules होते हैं, कुछ regulations होते हैं जो हमें सही और गलत के बीच में difference बताते हैं. Ethics are moral principles that govern a person's behavior. ये ऐसे moral principles हैं जो किसी भी person के behavior को govern करते हैं और conduct of an activity या फिर उसकी activity किसी भी तरीके के काम को करने में help करते हैं. These are based on well-founded standards of rights and wrongs that prescribe what humans should do and what they should not do. ये ethics ही हमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए. When we see an injustice happening, अगर हम कुछ बुरा होता हुआ देखते हैं, our inner voice tells us something is not right. हमारी जो अंतरात्मा है वो कहती है कि ये सही नहीं है, इसे रोको. Our ethics depend on our upbringing. हमारे जो भी उसूल है, ethics means उसूल, वो हमारी upbringing पे डिपेंड करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं. जैसी परवरिश हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं. बट मोस्ट ऑफ अस कैन यूजुअली डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. लेकिन इसके अलावा भी हमें सही गलत के बारे में पता होता है. What are AI ethics? अब जैसे हम ethics की बात अभी कर रहे थे तो AI के भी कुछ ethics हैं. क्या है वो? Let's see. AI ethics is a set of guidelines that advise on the design and outcome of artificial intelligence. AI ethics क्या है? ये एक set of guidelines हैं जो क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं. डिज़ाइन ऐसे किए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड इसे डिज़ाइन किया गया है. AI ethics are the moral principles and techniques that form the guideline for the development and responsible use of artificial intelligence technology. ये जो AI ethics हैं ये डेवलप किए गए हैं, इसमें कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स डाले गए हैं जो किस बारे में बताते हैं. वो बताते हैं कि कैसे AI को डेवलप करना चाहिए, कैसे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना चाहिए. Ethical AI ensures that the AI initiatives of an organization maintain human dignity. ये जो ethical AI है वो क्या करता है? वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान रखे. प्रैक्टिस फेयरनेस, लोगों के साथ फेयर रहे. एंड डू नॉट कॉज एनी हार्म टू पीपल. तो AI एथिक्स में ये पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं कि किसी को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. Artificial intelligence power Google search engine enables Facebook to target advertising and allows Alexa and Siri to do their jobs. ये जो AI पावर है इन सबको Google को, Facebook को या Alexa या Siri को हेल्प करता है अपने जॉब्स को बेटर तरीके से करने में. AI is also behind self-driving cars, predictive policing and autonomous weapons. AI जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के पीछे भी है, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग के पीछे भी है, ऑटोनॉमस वेपन्स के पीछे भी है और बहुत सारी चीज़ों के पीछे AI वर्क कर रहा है. ये जो ऑटोनॉमस वेपन है ये क्या कर सकते हैं? किसी को भी मार सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. मीन्स हम बिना हमारे कमांड के भी ये AI वेपन्स किसी को भी मार सकते हैं. सो इन सब में जो है ये एथिक्स वर्क कर रहे हैं. These are other AI applications. These and other AI applications raise complex ethical issues. Unfortunately, artificial intelligence lacks the ability to judge right from wrong. लेकिन क्या होता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो गलत और सही में भेदभाव नहीं कर पाता है. AI can only separate right from wrong. AI जो है सही को गलत में से निकाल तो सकता है बेस्ड ऑन द डेटा, जो डेटा उसको दिया जा रहा है. दैट हैज़ बीन लेबल्ड राइट एंड रॉन्ग. जिस डेटा पे राइट लिखा है AI उसे राइट कहेगा, जिस पे रॉन्ग लिखा है उसे रॉन्ग समझेगा. बाय द डेवलपर. व्हेन अ डेवलपर फेल्स टू कंसिडर द आउटकम ऑफ एवरी एल्गोरिथम. जब एक डेवलपर फेल हो जाता है कंसिडर करने में किसी भी आउटकम को,
दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, जो इम्प्लीमेंट किया गया है, इट मे लीड टू अनडिज़ायरेबल और अनएथिकल रिजल्ट्स, इसकी वजह से अनडिज़ायरेबल या फिर अनएथिकल जो है रिजल्ट आ सकता है अगर एआई फेल हो जाता है। एज प्रोग्राम बेस्ड मशीनरी एआई सिस्टम इज़ नॉट मॉरली अकाउंटेबल एजेंट। अगर हम बात करें प्रोग्राम बेस्ड मशीनरी की तो एआई जो है ये मॉरली अकाउंटेबल एजेंट नहीं है। सो द क्वेश्चन इज हु इज टू बी ब्लेम्ड इफ एआई मेक्स अ मिस्टेक और इफ एआई गिव्स इनकरेक्ट रिजल्ट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको इसके लिए गुनहगार ठहराया जाए अगर एआई किसी तरीके की कोई मिस्टेक करता है या कोई गलत रिजल्ट देता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। Now let's learn why are AI ethics important? AI ethics important क्यों है? AI is a technology designed by humans to replicate, enhance और even replace human intelligence. तो AI को बनाया ही इसलिए गया है कि वो human intelligence को compete कर सके, उसकी जगह ले सके। AI relies on large volume of data to produce output. AI क्या करता है, कहाँ से डेटा लेता है, उसके अंदर जो भी डेटा फिल किया जाता है उसके बेसिस पे वो चीज़ों को इवेलुएट करता है, उसके बेसिस पे जो है रिएक्ट करता है। Poorly designed AI algorithm built on data that is faulty, inadequate or biased can have unintended or potentially harmful result. So अगर AI को poorly डिज़ाइन किया गया है तो यहाँ पे जो algorithm है वो सही नहीं होगा, faulty होगा, inadequate होगा और biased भी हो सकता है और ये humans को क्या कर सकता है, प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। बिकॉज ऑफ द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ एआई एल्गोरिदम, क्योंकि ये जो एआई एल्गोरिदम है ये काफ़ी जल्दी एडवांस होता जा रहा है, इट्स नॉट ऑलवेज क्लियर हाउ द एआई रीच इट्स कंक्लूजन। सो ये पता नहीं लगाया जा पा रहा है कि एआई का जो कंक्लूजन है वो सही है या नहीं। यू हैव टू स्टडी एआई एथिकल कंसर्न एंड डेवलप एन एथिक फ्रेमवर्क फॉर एआई। आपको इसे पढ़ना होगा और इसके बारे में एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। द एआई एथिक्स फ्रेमवर्क इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन कंसिडरिंग द रिस्क। ये जो फ्रेमवर्क है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिस्क को कंसिडर करने में हेल्पफुल है, बेनिफिट्स जो एआई के उसको कंसिडर करने में हेल्पफुल है, एंड एस्टैब्लिशेस गाइडलाइन फॉर इट्स रिस्पॉन्सिबल यूज़, और इस्टेब्लिश करता है गाइडलाइन अपने रिस्पॉन्सिबल यूज़ के लिए। नेक्स्ट कम्स एथिकल कंसर्न्स इन एआई। एआई के कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं, क्या है वो? लेट्स सी सम ऑफ द एथिकल कंसर्न्स ऑफ एआई। पहला है बायस, सोशल इनजस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस। सो इंस्टेंसेस ऑफ बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैव रेज्ड मेनी एथिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंस्टेंसेस मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि एआई कई बार बायस हो गया, उसने डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट किया है और इसके वजह से बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस रेज आउट होते हैं। एआई बायस occurs when an algorithm produces results that are prejudiced because they are trained on biased data. ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है एआई बायस तब होती है जब एल्गोरिदम जो दिया गया है वो कैसी हो, वो प्रेजुडिस्ड हो, एंड इसकी वजह से क्यों? क्योंकि एआई को जो ट्रेन किया गया है वो ट्रेन किया गया है ऑन बायस डेटा, बायस डेटा के अकॉर्डिंग से ट्रेन किया गया है। द डेटा फेड इनटू द एल्गोरिदम कुड कॉज बायस बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। ये जो डेटा इसके अंदर होता है वो 3 रीजन्स की वजह से बायस कहलाया जा सकता है। पहला है द डेटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द मेन पॉपुलेशन। डेटा जो है मेन पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट ना करता हो। इट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा, अगर वो डेटा हिस्टोरिक डेटा से रिलेटेड है, विच इटसेल्फ इज बायस, जो कि खुद ही बायस है, और द डेटा हैज़ बीन अनएथिकली मैनिपुलेटेड, या फिर डेटा को मैनिपुलेट किया गया हो। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से एआई बायस्ड हो सकता है। दिस may lead to a social injustice and create a barrier of building an inclusive society. ये क्या कर सकता है? ये एक सोशल इनजस्टिस को क्रिएट कर सकता है और एक बैरियर क्रिएट कर सकता है एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, इन 2019 a team from the University of California discovered a problem. 2019 में एक यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया की, उसने क्या डिस्कवर किया? उसने एक प्रॉब्लम देखी विथ एआई दैट
was being used to allocate healthcare in 200 million patients in US, जिसमें जो है 200 मिलियन पेशेंट्स थे, उनके बीच में किसी हेल्थ केयर इशू के बारे में बात हो रही थी. So black people were assigned lower risk score and therefore lower standards of healthcare than white people. अब इस केस में क्या हुआ, जो ब्लैक लोग थे उन्हें जो है कम रिस्क बताया गया. एआई ने बोला कि इन्हें कम रिस्क है और इसलिए उन्हें जो है कम स्टैंडर्ड दिया गया था हेल्थ केयर का, कंपैरिजन टू वाइट पीपल, वाइट लोगों के कंपैरिजन में. दो ब्लैक पेशेंट इनफैक्ट एक्सपीरियंस हायर लेवल ऑफ हेल्थ रिस्क, लेकिन इसका ऑपोजिट था. एआई ने जो डिपिक्ट किया, जो सोचा, उसका ऑपोजिट था. यहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उनको ज़्यादा खतरा था उस बीमारी का. दिस प्रॉब्लम अकर्ड सिंस द एआई सिस्टम वाज एलोकेटिंग रिस्क वैल्यूज. ये प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब एआई सिस्टम ने क्या किया, एलोकेट किया रिस्क वैल्यूज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर के कॉस्ट के अकॉर्डिंग. एंड ब्लैक पेशेंट्स वर लेस एबल टू पे फॉर हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर. और जो ब्लैक लोग थे वो इतने महंगे जो है खर्चे को नहीं उठा सकते थे, इस वजह से एआई बायस्ड हो गया. नेक्स्ट कम्स टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी. So the idea of singularity is that AI reaches up to a human level of intelligence. Humans will someday be overtaken by AI machines. ये जो आइडिया सिंगुलैरिटी का, अकेलेपन का, is that कि एआई जो है ह्यूमन लेवल तक पहुंचने वाला है, उसके इंटेलिजेंस तक पहुंचने वाला है. एंड कुछ समय ऐसे बाद ऐसा होगा कि एआई ने ह्यूमंस की जगह ले ली है. द फियर दैट रोबोट्स विल टेक ओवर द वर्ल्ड हैज़ बीन डिस्कस्ड इन साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन में ये डिस्कस किया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब रोबोट्स ह्यूमन की जगह ले लेंगे. बट विथ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एआई इट इज टर्निंग इनटू अ सीरियस डिबेट. लेकिन जैसे जैसे एआई बढ़ता जा रहा है, ये एक काफ़ी बड़ा डिबेट बन चुका है. दिस आइडिया अज्यूम्स दैट सच सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम्स वुड क्विकली सेल्फ इम्प्रूव, डेवलप इवन मोर इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड मे ईदर कंप्लीटली कंट्रोल ह्यूमंस और मे कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज विच इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल रिस्क. सो ये सारी चीज़ों जो है, इन सब चीज़ों को देख के ये एक रिस्क फैक्टर माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में हो सकता है ये जो एआई है ये खुद को सेल्फ इम्प्रूव कर ले, मीन्स खुद को इम्प्रूव करना सीख जाए. हो सकता है ये जो है अपने आप को और ज़्यादा इंटेलिजेंट बना ले, ह्यूमंस से भी पूरी तरह से हो सकता है ह्यूमंस पे कंट्रोल कर ले, और ये भी हो सकता है ह्यूमंस को एक्सटिंक्ट करने में ये कोई भी कमी ना छोड़े, और इसे ही एक्सटेंशियल रिस्क कहते हैं. AI impact on job and wealth inequality. So AI का impact जो है जॉब्स पे पड़ रहा है और वेल्थ भी इनइक्वल हो रहा है. So one of the primary concern people have with AI is future loss of job. लोगों को ये मानना है कि आगे जाके AI जो है उनकी जगह ले लेगा तो उनके पास जॉब तो रहेगी ही नहीं. Should we strive to fully develop and integrate AI into society? If it means many people will lose their jobs and quite possibly their livelihood. अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो देंगे और कई लोग तो अपनी लाइवलीहुड भी खो देंगे, वो जीने का सहारा खो देंगे. As more and more jobs are being automated, humans will move from physical work to strategy. जैसे जैसे काफ़ी ज़्यादा जॉब जो हैं वो ऑटोमेट किए जा रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं वो अपने फिजिकल वर्कआउट से हट जाएंगे एंड स्ट्रैटेजी से हट जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से हट जाएंगे. दिस इज ऑफ कोर्स एन आइडियल सिचुएशन फॉर ह्यूमन गॉट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट देयर इज स्टिल अ कंसर्न दैट इफ देयर विल बी सफिशिएंट जॉब फॉर बोथ ह्यूमन एंड एआई. अब आगे जाके कंसर्न ये बनता है कि क्या ह्यूमंस और एआई दोनों के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क रहेगा इन द न्यू फ्यूचर. एज अ जॉब शिफ्ट अकर्स फ्रॉम ह्यूमन टू एआई, एन एम्प्लॉयर कुड कट डाउन द कॉस्ट बाय यूजिंग एआई. तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है तो अब क्या करेगा, कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो सोचेगा कि मेरे को ह्यूमंस क्या है लेस एफिशिएंट है, एआई ज़्यादा एफिशिएंट है, तो मैं एआई को क्यों ना रखूँ, ह्यूमंस को रखने की ज़रूरत ही क्या है. ऐसे ऐसे क्या होगा, जॉब शिफ्ट होती जाएगी एआई की तरफ और ह्यूमंस अनएम्प्लॉयमेंट के कगार पे आ जाएंगे.
An ethical concern is that revenues will no longer be distributed fairly among people. एक बहुत ही बड़ा जो एथिकल कंसर्न है वो ये है कि जो रेवेन्यू है वो लोगों के बीच में बराबर मात्रा में नहीं बांटा जाएगा, बट मेनली गो टू AI ड्रिवन कंपनीज। ये कहाँ जाएगा? जो उन कंपनीज के पास जो AI को चलाते हैं, एंड कंट्रीज विथ AI टेक्नोलॉजी, और ऐसे कंट्रीज के पास जिनके पास AI भरपूर मात्रा में। सो रेवेन्यू की भी काफ़ी कमी हो जाएगी। Next comes privacy and security. Privacy includes the right not to have one's personal matter disclosed publicly. So privacy क्या है? Privacy में आपको जो है ऐसे rights मिलेंगे। So privacy means not disclosing anybody's personal information. किसी के personal information को public ना करना, इसे ही हम privacy कहते हैं। The right to be left alone, information privacy etc. means लोगों के पास ये right है कि वो अकेले रह सकते हैं, उनकी information private रह सकती है। So ये कुछ जो है rights हैं लोगों के, controlling who collects which data and who has access is difficult in the digital world. किसके पास कौन सा डेटा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। दिस हैड लेड टू सिक्योरिटी कंसर्न, और इसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फेस रिकॉग्निशन इन फोटो एंड वीडियो अलाउज आइडेंटिफिकेशन, प्रोफाइलिंग एंड सर्चिंग फॉर इंडिविजुअल। फेस रिकॉग्निशन की वजह से लोगों को आप कहीं भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ बिहेवियर। यू अवेल ऑफ मेनी फ्री सर्विसेज ऑन द नेट, leaving behind a trail of data but you are often not made aware of it. हम लोग क्या करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इतने ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं कि हम अपने पीछे बहुत सारा डेटा छोड़ जाते हैं, अपने से रिलेटेड डेटा को छोड़ देते हैं, और कई बार हमें इनका पता भी नहीं होता। The big 5 companies Amazon, Google, Microsoft, Apple and Facebook use AI to collect this data. ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस डेटा को यूज़ करती हैं, AI को यूज़ करती है इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेन, मेंटेन एंड डायरेक्ट योर अटेंशन। आपकी अटेंशन को पाने के लिए आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं। यू कैन इवन से दैट दीज AI एल्गोरिदम्स में नो यू बेटर देन यू नो योरसेल्फ। आपको ये पता जान के हैरानी होगी कि आपसे ज़्यादा ये AI एल्गोरिदम्स आपको जानते हैं। Your data can be used to change your behavior through manipulation and deception. आपका जो डेटा है इसे यूज़ किया जा सकता है आपके बिहेवियर और को चेंज करने के लिए, आपके डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। Many advertisers, marketers and online sellers use the data to maximize profit, but this data also has a potential of being misused by third parties. बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं, मार्केटर्स हैं या फिर ऑनलाइन सेलर्स हैं, वो इस डेटा को यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, और इनके पास ये पोटेंशियल होता है ये आपकी डेटा को थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, एंड इट कैन मिसयूज इट। फॉर एग्जाम्पल, इन September 2019, Twitter admitted letting advertisers access its users' personal data to improve their marketing campaign. So 2019 के सितंबर में ट्विटर ने इस बात को माना था कि उसके सोशल नेटवर्किंग साइट से एडवर्टाइजर्स ने डेटा को, लोगों के पर्सनल डेटा को लिया अपने मार्केटिंग कैंपेन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट कम्स अकाउंटेबिलिटी। सो चिल्ड्रन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम बॉट अबाउट बाय AI decision making is who should be blamed or held accountable when an AI causes harm. So सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर मान लेते AI ने कोई गलत डिसीजन लिया तो इसके लिए किसको ब्लेम किया जाए, किसको दोषी ठहराया जाए। There is an accountability gap since the legal system is built for humans. यहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी गैप मिलेगा क्योंकि जो भी लीगल सिस्टम है वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, पनिशमेंट उन्हें मिलती है, लॉ उन्हें ही पनिश करता है। When humans are replaced by autonomous agents like self-driving cars, social media, algorithms and others, the same system and rules cannot be applied.
अब अगर ह्यूमंस की जगह इन ऑटोनॉमस एजेंट्स ने ले लिया, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार ने ले लिया या फिर सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने ले लिया या दूसरी चीज़ों ने ले लिया, तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ अ सेल्फ ड्राइविंग कार मेक्स एन ऑटोनॉमस डिसीजन टू लीव अ हाईवे। मान लेते हैं कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार ने अपना डिसीजन, खुद का डिसीजन लिया कि वो हाईवे से नहीं जाएगा। At high speed to avoid an obstacle and crash into the another vehicle, you cannot take the self-driving car in the front of the court and face justice. तो अब उसने सोचा कि चलो अपना टाइम बचाता हूँ, ऑब्स्टिकल से बचता हूँ, मैं जो है हाई स्पीड में दूसरे रास्ते से जाता हूँ। सो ऐसे केस में मान लो उसका किसी कार से कोलिजन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उस सेल्फ ड्राइविंग कार को कोर्ट नहीं लेके जा सकते। And even if you did, there is no legal rule that can be applied to the case. अगर आपने ऐसा कुछ किया भी तो भी कोई भी लीगल रूल नहीं है इसके खिलाफ। Next is human interaction. This is the beginning of an age where there is an increase in interaction with machines as if they are humans. तो यहाँ पे ये जो एज है ये ऐसे आ चुका है, मीन्स मशीन्स इतनी ज़्यादा जो है आगे बढ़ चुके हैं कि ऐसा लगता है कि ये ह्यूमंस से ज़्यादा अच्छे हैं एंड दे आर लाइक ह्यूमन, ये ह्यूमंस की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है। AI chatbots and digital assistants are being designed to show emotions. AI chatbots को यूज़ किया जा रहा है, डिजिटल असिस्टेंट को यूज़ किया जा रहा है इमोशन शो करने के लिए and mimic human behavior and build friendly relationship. ये क्या करते हैं? ह्यूमंस के बिहेवियर को मिमिक करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं ह्यूमंस के साथ। This gives rise to the possibility that some humans may interact more with AI. So इसके साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि जो कुछ ह्यूमंस हैं वो AI के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करने लगे, which will affect their relation with other humans, जिसकी वजह से उनका रिलेशन दूसरे ह्यूमंस के साथ खराब हो सकता है। For example, a child can develop a friendship with AI pet. एक जो बच्चा है वो AI पेट के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए सिंस इट्स डिज़ाइन टू प्लीज़ ह्यूमंस, क्योंकि उस पेट को क्यों बनाया गया? ह्यूमंस को प्लीज़ करने के लिए। बट मे नॉट वॉन्ट टू इंटरैक्ट विथ ह्यूमन फ्रेंड्स, लेकिन हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ, ह्यूमन फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करना ना चाह रहा हो। हु मे नॉट ऑलवेज एक्ट एज पर द चाइल्ड्स विश, वो लोग उस बच्चे के विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, इसलिए हो सकता है वो बच्चा उसके साथ ना रहना चाह रहा हो। तो आने वाले समय में वो बच्चा क्या करेगा? AI के आप कह सकते हो एक तरीके से काबू में आ जाएगा, उसे वही चीज़ें पसंद आएंगी जो वो चाहता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI एथिक्स। अब इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स इज क्रूशियल फॉर AI सिस्टम। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है एथिक्स का, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है AI सिस्टम के लिए। टू प्रोवाइड सेफ्टी गाइडलाइंस दैट कैन प्रिवेंट रिस्क फॉर ह्यूमन। ये क्या कर सकते हैं? ये सेफ्टी गाइडलाइंस को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है रिस्क फॉर ह्यूमन विल बी प्रिवेंटेड। टू सॉल्व एनी इशू रिलेटेड टू बायस एंड टू बिल्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। किसी भी तरीके का कोई भी इशू है उसे सॉल्व इजिली किया जा सकता है एंड वो बायस्ड नहीं होगा। सम ऑफ दीज एथिकल कंसर्न्स आर इंटरलिंक्ड। इसमें से जो कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फॉर इंस्टेंस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम विल हेल्प रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा तो वो क्या करेगा? हेल्प करेगा चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में, क्वेश्चंस को एड्रेस करने में ऑन ऑफ बेसिस एंड अकाउंटेबिलिटी। द डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस इज एट द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ AI एथिक्स। ये जो डिग्निटी है ह्यूमंस का वो क्या है? ये एक क्वेश्चन है, ये हार्ट का एक क्वेश्चन है AI एथिक्स से रिलेटेड। और ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो फ्री हैं एंड वो सब डिग्निटी में इक्वल हैं। सो नो फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी असाइंड अ लेवल ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। इसलिए कोई भी जो फॉर्म है टेक्नोलॉजी का उसे असाइन नहीं करना चाहिए इन ह्यूमन आइडेंटिटी के लेवल पे या फिर डिग्निटी पे। ये सिस्टम्स must be conceived, designed and implemented to serve and protect human being
एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ये AI जो है इसे ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि ये ना ह्यूमंस को कोई किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएं और उन्हें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें। ह्यूमन डिग्निटी नीड्स इंक्लूड सिक्योरिटी, human rights, transparency, justice, accountability, opportunity, innovation and inclusiveness. So ये सारे फैक्टर्स जो हैं इस ह्यूमन डिग्निटी में आते हैं। AI can help in achieving these needs, but at time even threaten them. So AI जो है इन चीज़ों में, इन नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करे, लेकिन टाइम आने पे इन्हें थ्रेटन करने का भी काम करे। AI and robots have raised fundamental questions about what we should do with these systems. So AI और जो robotics हैं उन्होंने मिलके क्या किया है, कुछ fundamental questions बनाए हैं कि what we should do with these system, इन systems के साथ क्या करना चाहिए, what the system should do, system को क्या करना चाहिए, and what the long term risk are, और क्या है long term risk. We are still unaware of all the possible issues. हम अभी भी बहुत सारे जो possible issues हैं उनसे unaware हैं that AI could lead to, AI जो भी कर सकता है। We will have to watch the development closely. इस development को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा to identify the issues early on and take necessary precautions. So इन issues को identify करने के लिए और necessary precautions लेने के लिए। Next topic is AI is imperfect. What if it makes a mistake? AI जो imperfect है और अगर क्या होगा अगर उसने कोई गलती की। So AI system is not immune to making mistakes and machine learning takes time to become useful. If trained well using good data, then AI system can perform well. सो AI जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा इम्यून नहीं है कि वो जो है मिस्टेक ना करे, और मशीन लर्निंग को टाइम लगता है यूज़फुल बनने में। AI को जो है ऐसा ट्रेन किया जाता है अगर इसे गुड डेटा के साथ ट्रेन किया जाए तो AI सिस्टम जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। However, if we feed AI system bad data or make error with internal programming, the AI system can be harmful. लेकिन अगर उसमें बैड डेटा को एंटर किया गया तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। टेक माइक्रोसॉफ्ट AI chatbot Tay, which was released on Twitter in 2016. So Microsoft AI chatbot जिसका नाम Tay है उसे रिलीज किया गया था ट्विटर पे 2016 में। In less than one day, due to the information it was receiving and learning from other Twitter users, the robot learned to spew racist slur and Nazi propaganda. So एक दिन के अंदर ये अंदर उसने जो है रेसिस्ट बिहेवियर सीख लिया था। माइक्रोसॉफ्ट शट द चैटबॉट डाउन इमीडिएटली। माइक्रोसॉफ्ट ने इस चैटबॉट को तुरंत ही बंद कर दिया। सिंस अलाउइंग इट टू लिव would have obviously damaged the company's reputation. अगर ये आज भी होता तो हो सकता है कंपनी की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाती। Yes, AI system make mistake. हाँ ये मिस्टेक करता है, but do they make greater or fewer mistakes than humans? क्या ये humans से ज़्यादा mistakes करते हैं? How many lives have humans taken with mistaken decisions? Humans ने गलत decision के साथ कितने लोगों की जान ली है, ये आपको बताना है। Is it better or worse when an AI makes the same mistake? अगर AI भी वही मिस्टेक कर जो हम humans ने की है तो क्या ये गलत होगा या सही होगा? So this was the chapter, children. Let's move on to let's recall. So AI is a science and technology based on disciplines such as computer science, biology, psychology, philosophy, mathematics and sociology. Ethics is a set of moral principles which help us discern between right and wrong. AI ethics is a set of guidelines that advise on the design and outcome of artificial intelligence. AI is a technology designed by humans to replicate, enhance and even replace human intelligence. AI bias occurs when an algorithm produces results that are prejudiced because they are trained on biased data. The idea of singularity is that if AI reaches
up to a human level of intelligence, human will someday be overtaken by AI machines. Privacy includes the right not to have one's personal matters disclosed publicly, the right to be left alone, information, privacy, etc. AI chatbots and digital assistants are being designed to show emotions and mimic human behavior to build friendly relationship with humans. Now children, let's move on to book exercise, which is exercise time. Here A exercise is tick the correct option. Here the first question is, dash is a set of moral principles which help us discern between right and wrong. Is it ethics, AI, both A and B, or none of these? So it is ethics. Next, dash have the ability to think, to retain knowledge, to learn from past experience, use reasoning to solve problem and to adapt a new situation. Is it AI, humans, both A and B, or none of these? So it is humans. So the rest questions are your homework. Do it yourself. Now B part is fill in the blanks. Here the first one is AI system are not immune to making mistakes and machine learning takes time to become useful. Second one is your data can be used to change your behavior through manipulation and deception. So the rest of the questions, question number 3 to 6 is your homework children. You have to do it yourself. Next comes C exercise, which is write true or false for the following statements. The first one over here is the AI ethics framework is important because it helps in considering the risk of and benefits of AI. It is true. As a job shift occurs from human to AI, an employer could increase the cost by using AI. Yes. This one is false. So do the rest of the questions yourself. So children, with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it and you may have learned about AI ethics. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.